We are starting with worksheet 1. Question number 1 is, in the given figure, L is parallel to M is parallel to N and P is the transversal. If angle 1 is equal to 110 degrees, find angles X, Y, Z and W. So this figure is given and you have been given three lines L, M and N and P as a transversal. It is cutting all three lines. So we need to find the value of X, Y, Z and W. सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. So since it is given that L is parallel to M, okay, no, do not consider at first, just consider line L. It will be more easy. Line L, okay. X and 1, angle 1 and angle X, they form linear pair, and we have read in the above points that these two angles, the linear pair, they are supplementary, okay. Therefore angle 1 plus X would be equal to 180 degrees. Linear pair, I've written this. जो भी आप एंगल्स हैं या जो भी थ्योरी है आप इस साइड में ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एंड यू नीड टू राइट इट टू गेट द मार्क्स. Okay, so angle 1 value is 110 degrees. We will substitute it here, and angle x we would get equal to 70 degrees. By just transposing it in this side, we would get angle x is equal to 70 degrees. Now we need to find the value of y. For finding the value of y, just consider these two lines L and M, okay, and P is a transversal. For line L and M, P is a transversal. अभी N को छोड़ दीजिए, बस इन दोनों को देखिए. यहाँ पर ना ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो एक पॉइंट पढ़ा था, द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल. एक्स और वाई जो है वो एक तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, इसलिए एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा. मैंने वही लिखा है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई. वाई बिकॉज angle y because they are alternate exterior angles, therefore angle y is equal to 70 degrees. ये आ गया, y भी आ गया. Now we need to find the value of z and w. For finding the value of z and w, let's find the value of z first. For finding the value of z, just consider these two lines M and N. Now just forget about line L, okay. Just consider L, M and this transversal P. This is a common transversal for this also, okay. So we had read that if for two parallel lines, if a transversal cuts those two parallel lines, then the pair of interior angles are equal. Y and Z, they form alternate interior angles for M and N. Therefore y will be equal to Z. Y would be equal to Z, alternate interior angles. Therefore angle Z is equal to 70 degrees. So X, Y and Z, they are 70 degrees. Now we need to find the value of W. For find the value of W, just consider this line N, okay. Z and W, they form linear pair. Linear pair, they are supplementary. Therefore angle Z plus angle W would be equal to 180 degrees. Linear pair. And we would substitute the value of angle Z, that is 70 degrees, plus angle W is equal to 180 degrees, and we can get angle W is equal to 110 degrees. This is the first method for finding angle W. We have another alternative method. Just forget about line M, okay. Just consider line L and line N. For these two lines, and line L, M and the transversal P. So for these lines, this angle W and this 110 degrees, they form alternate exterior angles, है ना. अगर M हटा देते हैं बीच से, L और N को लेते हैं और P लेते हैं बीच में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल alternate exterior angles बन जाएगा. And we have seen that if the two lines are parallel and they are cut by a transversal, then the pair of alternate exterior angles are equal. Therefore angle W would be equal to 110 degrees. ऐसे भी निकाल सकते हैं. So मैंने तो इस ऐसे निकाला हुआ है, आप नोट कर सकते हैं. अगर मार्क्स चाहिए तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा. स्टेप स्किप करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके. Now here comes your question number 2. In the given figure, in quadrilateral ABCD, angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degrees. Is AD parallel to BC? Justify. So just consider the figure first. This looks like a trapezium, okay. ट्रेपेजियम पता है, नहीं पता तो ये होता है ट्रेपेजियम, ऐसा ही होता है. क्वाड्रिलैटरल मतलब एनी क्लोज फिगर विथ 4 साइड्स, 1 2 3 4, ओके. क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है, पता है, ABCD.
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब ये और ये वाला जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे, और वो किसके इक्वल है, उसका वैल्यू देती है 90 डिग्रीज। पूछ रहा है इज ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी है क्या, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला जो लाइन सेगमेंट्स है, ये दो लाइन सेगमेंट्स ये इक्वल है, पैरेलल है क्या, है या नहीं पूछा उसको, है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे, जस्टिफाई भी करना है हमको। तो इस तरह से लिखेंगे आप गिवन जो पूछ रहा है और कैसे आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं। सो ये मेथड होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने ऊपर नहीं लिखा हुआ है, भूल गई थी लगता है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। गिवन a quadrilateral ABCD angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degrees। सो गिवन में तो जो क्वेश्चन में है ना आप उसे ही लिख दीजिए। और टू प्रूव मतलब वो क्या पूछ रहा है, AD इज पैरेलल टू BC, यही आपका क्वेश्चन है, AD इज पैरेलल टू BC और नॉट, वी नीड टू फाइंड इट। सो द प्रूफ इज, अब आप बोलेंगे तो दिख रहा है पैरेलल, दिखने से नहीं होता है ना, लिखना पड़ेगा, पूछ रहा है वही। सो वी आर स्टार्टिंग द प्रूफ एज सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब हम इन दोनों को जस्ट ऐड कर रहे हैं एंड वी वुड बी गेटिंग 180 डिग्रीज। और हमने सेकंड पॉइंट जो था वो 3 पॉइंट जिनकी वजह से एक दो लाइंस पैरेलल होते हैं, वो पॉइंट पढ़ा था ना, याद आ रहा होगा, उसे यूज़ करेंगे अब हम। सिंस द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्रीज, मतलब ये टू एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री दिख रहे हैं। सो सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्रीज, देयरफॉर AD इज़ पैरेलल टू BC विद AB एज अ ट्रांसवर्सल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या है, 180 डिग्रीज है। और अगर टू लाइंस पैरेलल होते हैं, सो एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degrees। मतलब जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ और इसे भी एक्सटेंड कर देती हूँ, ये दो लाइंस पैरेलल है या नहीं निकालना है, और बीच में ए बी जो हो जाएगा वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा ना। सो ये वाला 1 और एंगल 2 दे फॉर्म इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है, दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ये ट्रांसवर्सल है, इसका इस वाले साइड पे या इस वाले साइड पे, इस साइड पे दोनों एंगल्स से इसे दे आएगा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इफ़ दे आर सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री है ना, आ रहा है ना दोनों का सम 180 डिग्रीज, इसलिए जो ये वाला लाइन है, ये दो लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगे। नहीं समझ में आएगा ना, एक और बार सुन लीजिए, आ जाएगा समझ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Draw a line segment AB is equal to 6 centimeters. Mark 2 points P and Q on it. Draw lines perpendicular to AB through P and Q, PR and QS. What can you say about PR and QS? Are they parallel? Justify. So maybe this diagram is a bit light because I have constructed it, है ना, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है राउंडर को यूज़ करके, और आपको भी कंस्ट्रक्ट ही करना है, इससे थोड़ा सा लाइट हो रहा होगा, नहीं दिख रहा है ठीक से, ठीक है ना, ओके। तो पहले ना फिगर बनाने का कोशिश, हमको फिगर भी बनानी है, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको फिगर बनाना होगा। सो क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने तो एक एक लाइन सेगमेंट बना दिया जिसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर्स। स्केल से मेजर करके आप 6 सेंटीमीटर्स खींच सकते हैं और उसे ए एंड बी मार्क कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मार्क 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन इट, कहीं पर भी पी और क्यू मार्क कर दीजिए। नाउ ड्रॉ लाइन्स परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी एंड क्यू। पी एंड क्यू से लाइंस ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर हो गए ए बी से, ओके। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे करते हैं, एक आर्क खींचते हैं विदाउट चेंजिंग द रेडियस, हम यहाँ पर एक आर्क खींचते हैं, यहाँ पर एक आर्क खींचते हैं, फिर इन दोनों को बीच में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आ जाता है 90 डिग्रीज, क्योंकि ये 60 है, ये 120 है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 90 डिग्रीज आता है। ये आता होगा आपको कंस्ट्रक्शन ना। यहाँ पर भी खींच दिया, यहाँ पर भी 90 डिग्रीज दोनों कंस्ट्रक्ट कर दिया, मैंने बना दिया। और वो जो टू लाइन्स है उन्हें क्या बोल रहा है, जो परपेंडिकुलर लाइन्स हमने खींचा है उनका नाम है पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस। वॉट कैन यू से अबाउट पी आर एंड क्यू एस? पी आर एंड क्यू एस के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, आर दे पैरेलल, वो पैरेलल है या नहीं आपको बताना है। सो गिवन है, जो गिवन है आप लिख सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ गिवन दिख नहीं रहा तो मैंने लिखा नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये एंगल्स आर पी क्यू एंड आई एस क्यू, पी जो है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा लिख सकते हैं आप, ओके। टू वेरीफाई इफ़ पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस,
इफ़ पी आर इज़ पैरेलल टू क्यू एस, ये दोनों पैरेलल है या नहीं, ये तो हमको निकालना है। नेक्स्ट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था ना, पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो अगर जस्ट इमेजिन अगर ये लाइंस पैरेलल होते तो आप क्या बोलते कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल। क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनिए। अगर ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल होते, आपको पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्रीज होता। वो प्रॉपर्टी यूज़ किया था, तो जस्ट उसका कन्वर्स करना है। अगर ये दोनों को हम 180 डिग्रीज बता दे तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ए बी ट्रांसवर्सल है, ये और ये पैरेलल है, कह सकते हैं। वही अभी करना है हम लोग को। अगर पूछ रहा है कि पैरेलल है या नहीं निकालो, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हमें बता देंगे। एंगल 1 और ये मतलब इसे हम एज्यूम कर लेते हैं एंगल 1 एंड 2। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 90 + 90। बोल रहा है ना 90 है, तो ये तो है ही 90। 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब वो सप्लीमेंट्री है। एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री है। और हमने क्या पढ़ा था? सिंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्रीज, मतलब ये जो है वो इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड उनका सम 180 डिग्रीज है। वो कब होता है? जब टू लाइन्स पैरेलल होते हैं। वो है तभी पी आर इज़ पैरेलल टू क्यू एस, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री है। इसलिए इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये वाला और ये वाला जो लाइन्स है वो पैरेलल है विथ पी क्यू और ए बी एज अ ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया होगा। Next question, question number 4. L is parallel to M is parallel to N. Find angle X and angle Y. फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि L, M और N जो है वो तीन लाइन से पैरेलल, हमें X और Y का वैल्यू निकालना है, एंगल X एंगल Y निकालना है। लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है? गिवन तो एक ही चीज़ है, L और M और N पैरेलल है, लिख दिया। टू फाइंड एंगल X एंड एंगल Y एंड द सोल्यूशन। नाउ कम्स द सोल्यूशन। सिंस L इज़ पैरेलल टू M एंड AB इज़ अ ट्रांसवर्सल, सबसे पहले X निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले X निकाल लेते हैं। L और M, X के लिए ना नीचे से तो कोई मतलब दिख नहीं रहा, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। N वाले को बस दिमाग से निकाल दीजिए, बस इन दोनों को देखिए। L इज़ पैरेलल टू M और AB एक्ट्स द ट्रांसवर्सल दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि X + 50 डिग्रीज जो है वो 180 डिग्रीज हो जाएगा। कैसे? मैंने लिखा है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। मतलब इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। L और M पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल है, सो इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है ना, इंटीरियर एंगल्स है, मतलब इसके अंदर है, बाहर नहीं है। इंटीरियर एंगल्स तो है लेकिन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर यहाँ एक होता यहाँ एक होता तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाता, बट ये दोनों सेम साइड पे है ना, लाइंस पैरेलल है, सो ये बन जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। L इज़ पैरेलल टू M, देयरफॉर X + 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, समझ आ गया होगा। बाय ट्रांसपोजिंग 50 डिग्रीज दिस साइड we would get angle X is equal to 130 डिग्रीज। X का वैल्यू तो आ गया, हमको Y भी चाहिए। Y के लिए क्या कर सकते हैं? Y के लिए ना लाइन L जो है उसे भूल जाइए, अभी M और N को कंसिडर करिए। M इज़ पैरेलल टू N एंड AB, B एंड C इज़ अ ट्रांसवर्सल ना, अब AB नहीं BC हो गया। M इज़ पैरेलल टू N, BC इज़ अ ट्रांसवर्सल। Y एंड 30 डिग्रीज दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दो लाइंस के लिए ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हो गए ना, सेम साइड ट्रांसफर थोड़ी ना। यहाँ पे होता तो ये वाला प्रॉपर्टी लगता, एक इधर है एक इधर है, मतलब दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। And we have read that if two lines are parallel and they are cut by a transversal, then the pair of alternate interior angles are equal. Therefore, y is equal to 30 degrees. आ गया. Therefore, x is equal to 130 degrees and y is equal to 30 degrees.